بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، ولایت علی چینل 313 کے توسط سے آپ کی توجہات کی نظر مسلسل یہ آج ہماری چوتھی نشست ہے، جس میں ہم سلسلہ گفتگو کو کچھ اس انداز سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آخر قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجوہات کیا تھی۔ 1400 سال سے امت مسلمہ، مسلمانوں کی اکثریت اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے اور اس واقعے پر مختلف حوالوں سے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلا کچھ اس احتجاج کو خاموشی سے کرتے ہیں، کچھ اسے خوشی کا نام دیتے ہیں، کچھ اسے غم کا نام دیتے ہیں، کچھ اسے صرف قابل افسوس سمجھتے ہیں، لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر، بلکہ اسے یوں کہا جائے کہ ایسے عوامل نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت جو ہے یہ ایک من گھڑت بات۔ تمام امت مسلمہ حتیٰ کہ ادیان عالم غیر مذہب نے امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پر اختلاف بھی نہیں ہے اور اس نے ہر مذہب اور ہر مسلک کے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ بے شک اسلام کے جتنے بھی واقعات تھے، آپ ان تمام واقعات کو، حضرت آدم کا واقعہ ہو، حضرت نوح کا سفینہ ہو، حضرت ابراہیم کا نار نمرود کو گلزار کرنا ہو، جناب یوسف کا کنویں میں جانا ہو، جناب یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا ہو، یہ تمام واقعات ہیں جس پہ قرآن کی مہر تصدیق ثبت ہے۔ مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان تمام واقعات کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں تو غیر مسلم ان تمام واقعات کے حقائق سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا بلیف ہے، آپ کا عقیدہ ہے، ہم اس پہ کچھ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسی باتیں عقل سے ماورا ہیں کہ کوئی انسان آگ میں کود جائے اور اسے کچھ نہ ہو، اور کہیں سے پانی آئے اور پوری کائنات میں چلا جائے، اور کوئی 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ غیر مذہب، غیر مسلک نے بھی بہت لکھا ہے۔ ایک جدید ریسرچ آئی تھی، اس ریسرچ نے کہا تھا کہ کائنات میں، دنیا میں بہت ٹاپک حسین ہے جس پہ ہر زبان میں بات ہوئی۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات۔ اور اس ریسرچ نے کہا تھا کہ 1400 سال سے ایک واقعہ، ایک کہانی مسلسل رپیٹ کی جا رہی ہے۔ مثلا میں آپ کو کوئی بھی ایک واقعہ سناؤں، یہ ہماری 10 روز نشست ہے، 10 روزہ مجالس ہے، میں آج ایک واقعہ پڑھوں، کل پھر اس کو پڑھوں، اگلے دن پھر اس کو پڑھوں، تو یقیناً سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کامنٹس میں اور شاہ صاحب کو اپنے پیغامات پہنچائیں گے کہ آپ علوی صاحب سے کہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں اس واقعے کو آپ روزانہ رپیٹ کر رہے ہیں جو ہم سن چکے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک ایسا واقعہ جسے ایک دفعہ سن چکا ہو اسے بار بار نہیں سن سکتا۔ وحد کربلا ہے، یہ جب بھی پڑھی جائے تب ہی تازہ نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے انسان کو اس واقعے سے سن کے بھی انسان اس سے گھتایا نہیں، انسانیت اس سے گھبرائی نہیں۔ یہ واقعہ کربلا
सिर्फ ये नहीं कि इन 10 दिनों में पढ़ा जाता है, ये पूरा साल बयान होता है। ये नज्म की सूरत में, ये नसर की सूरत में, ये तकरीर की सूरत में, ये तहरीर की सूरत में। और उसी रिसर्च में कहा था कि कायनात में वाहद नाम इसमें हुसैन है जिसे सबसे ज्यादा लिखा और बोला जाता है। ओह सुभान अल्लाह, जियो किबला। तो जिस वाक्य को इस्लाम ने, जिस वाक्य को इंसानियत में इतनी अहमियत है, और हम खुशकिस्मत तरीन वो लोग हैं जो इस वाक्य के, इस किस्सा के, इस कहानी के, इस करबला के वो पैरोकार हैं कि जो इस राह करबला को मुसलसल बयान करने वालों में से, जो इस करबला के शहदाई हैं, जो इस करबला के आशिक हैं। तो साहबान, मुसलसल हमारी कोशिश ये है कि जिस वाक्य की इतनी अहमियत है, हम उस वाक्य को सिर्फ एक वाक्य न समझे, उसके मुहर्रिकात जाए। गुज़िश्ता मजालिस में हम मुसलसल बयान कर रहे हैं कि आखिर ये दुश्मनी क्यों थी, किस वजह से थी। कल की मजलिस में मैंने आपके सामने पढ़ा कि ये दुश्मनी इमाम हुसैन की यजीद के साथ ही सिर्फ नहीं, यजीद के बाप की अली के, हुसैन मौला के बाप के साथ, और यजीद के दादा की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा के साथ भी दुश्मनी थी। उन दुश्मनी की वजूहात क्या थी, वो वजूहात मैंने आपके सामने कल की मजलिस में रखी। कल हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब एक मुसलसल इक्तदार से दूर रखने के बाद, जब अली इब्न अबी तालिब के हवाले इक्तदार किया गया, तो अब जब ये मौला अली के सामने इक्तदार आया है, तो मौला अमीर अल मोमिनीन तक पहुंचते पहुंचते मलूकियत ने, हाकमियत ने इस्लाम को इतना कमजोर कर दिया था कि अब जब अमीर अल मोमिनीन को इक्तदार दिया गया, तो अमीर अल मोमिनीन का दौर इक्तदार आसान दौर नहीं था। एक शोरश बरपा थी, एक चारों तरफ से साजिशों का गढ़ था, जिसपे मुसलसल इस हवाले से मौला अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद हम अली इब्न अबी तालिब को इन साजिशों में इतना घेर दें कि अली का दौरे हुकूमत जो है वो कमजोर हो। इसलिए आज तक ताहा हुसैन जैसा मुतअस्सब और बहुत से मौरखीन ये लिखते हैं कि माजल्ला सुम्मा माजल्ला अली कामयाब सियासतदान नहीं थे, इसलिए कि उनके सामने अली के होते हुए माविया की सियासत, और वो माविया की सियासत को बेहतर सियासत समझते थे। यकीनन जहां माविया की सियासत हो वहां अली सियासतदान नहीं थे। अब हम बताएंगे, मैंने आपके सामने कहा कि यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी थी। आज की मजलिस आपके इंतहाई काम आने वाली गुफ्तगू है, और मैं, क्योंकि ये चैनल जहां इतनी सही कोशिश काविश करता है, तो मेरी हमेशा विलायत अली चैनल पे पढ़े जाने वाली मजालस और गुफ्तगू में कोशिश ये होती है कि मैं इस चैनल पे ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दूं, ऐसे मौजूआत रिकॉर्ड करवा दूं जिसे आम तौर पर मिंबर से पढ़ा नहीं जाता। इसे हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया जाए, इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों के काम आ सके ये रिकॉर्ड कि इस मौजू पे और इस टॉपिक पे बोला जा चुका है। मैंने आपके सामने पढ़ा कि यजीद के दादा हुसैन के दादा को दुश्मनी क्या थी। इसी अबू सुफियान ने फतह मक्का पे कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद यही अबू सुफियान मक्का से इसकी नस्ल, इसकी औलाद शाम की तरफ मुंतकिल हो गई। ये शाम चले गए। अगर हम लफ्ज शाम की गहराई में जाएं तो ये शाम जो है, इसका किताबें कहती हैं कि जिसे आज मुल्क शाम कहा जाता है, ये जनाब नूह के बेटे साम के नाम पे एक मुल्क आबाद हुआ था, एक शहर आबाद हुआ था। साम के बाद इस लफ्ज में तदवीन हुई, इसकी तरतीब तब्दील हुई और इसे शाम मशहूर हो गया। ये कदीम तरीन शहरों में से जनाब नूह के दौर में इस शहर की तारीख जो है वो हमें किताबों से मिलती है। शाम
تجارت کا مرکز بن چکا تھا۔ شام شہر کو آپ یہ سمجھیں کہ شام شہر میں ہر طرح کی رنگ و نسل کے لوگ آتے تھے اور وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے۔ شام میں مختلف قبائل کے لوگ تھے، اور جہاں مختلف قبائل کے لوگ ہوں، جہاں کسی ایک قبیلے کی سرپرستی نہ ہو، جہاں کوئی ایک قبیلہ حکمران نہ ہو، وہاں پر قانون کی کمی ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے اوپر حاکمیت کوئی نہیں جھاڑتا، تو اس وجہ سے تمام افراد اپنی من مرضی جو ہے وہ مسلط کر لیتے ہیں، تو انہیں ذہنی فکری آزادی ہوتی ہے۔ عرب کے جتنے بھی خطے تھے، عرب کے جتنے بھی علاقے تھے، ان تمام علاقوں میں قبائل کی حکمرانی تھی۔ جو اس دور کا اس قبیلے کا حکمران ہوتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر وہاں کام نہیں ہو سکتا تھا، مرضی کے بغیر غلام لیا نہیں جا سکتا تھا، آزاد نہیں کیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ اونٹ گھوڑا بھیڑ بکری کی تجارت بھی قبیلے کے سردار کے بغیر نہیں کیا۔ لیکن شام ایک ایسا شہر تھا، ملک تھا، جہاں پر ان تمام چیزوں کی آزادی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو شام شہر کی اس آزادی کی وجہ سے، شام میں اس آزادانہ ماحول کی وجہ سے، نسل ابو سفیان جو تھی وہ شام کی طرف ہجرت کر گئی۔ یہ لوگ شام جا کر آباد ہو گئے۔ اب رسول کے بعد جب پہلی خلافت کا دور آیا، متوجہ ہیں آپ بات کی جانب؟ بالکل بالکل۔ اب یہ بات یہاں سے سنیے گا، یہ بات تھوڑی خشک ہوگی، لیکن یہ ہسٹری کا ایک مضبوط ترین حصہ ہے جو میں آج کی مجلس میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ رسول کے جانے کے بعد جب پہلا خلیفہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے فتوحات، یعنی کہ مختلف علاقوں میں اپنا لشکر بھیج کے ان علاقوں کو فتح کرنے کا سوچا، تو اس نے ایک لشکر شام کی طرف بھیجا تاکہ وہ شام کو بھی فتح کرے۔ روم کی طرف لشکر چلے گئے، ایران کی طرف لشکر چلے گئے، کیونکہ اسلام مرکز بن چکا تھا، اسلام کی حاکمیت ہو چکی تھی، اور عرب کا علاقہ جو ہے وہ اسلام کے تسلط میں آ چکا تھا۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ اب حکومت کے دائرے کو بڑھائیں، صرف یہ عرب تک نہ رہے، اب ہم دوسرے ریاستوں کی طرف اور دوسری تہذیبوں کی طرف بھی جائیں۔ تو روم کی طرف اور ایران کی طرف جب لشکر بھیجے تو انہی میں سے ایک لشکر شام کی طرف بھیجا۔ جب ایک لشکر بھیجا تو اس کے سردار مقرر کیے عمر بن عاص، شرجیل ابن حسنہ، ابو عبیدہ ابن جرحہ اور یزید بن ابو سفیان۔ لفظ سنیے گا کہ آپ یہ سردار جو ہیں عمر بن عاص، شرجیل ابن حسنہ، ابو عبیدہ جرحہ اور یزید بن ابو سفیان، یہ چار لوگ اس کے سردار۔ یہ بات آج کی گفتگو میں ریکارڈ کا حصہ بننی چاہیے، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ایک معاویہ کا بیٹا یزید تھا اور ایک معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا۔ ایک یزید ابن معاویہ تھا اور ایک یزید ابن ابو سفیان تھا۔ معاویہ کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یزید تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھا تھا۔ ایک بہت بڑی علمی غلطی، ایک بہت بڑی علمی بدماشی، اگلی سطر میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں کہ یہ جو حدیثیں گڑی گئی ہیں نا کہ یزید جنگ قسطنطنیہ میں گیا تھا اور نبی کی حدیث تھی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، تو اس جگہ پہ جس یزید کا یہ تذکرہ کرتے ہیں جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں، پہلے تو ہمارے عقیدے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن واقعہ قسطنطنیہ میں بھی جو یزید تھا وہ یزید بن معاویہ نہیں تھا، وہ یزید بن ابو سفیان تھا۔ اگر آپ اس سے مراد یزید بن معاویہ لیں گے تو میری سمجھ میں ان مورخین کی یہ بات نہیں آتی کہ اگر وہ یزید بن معاویہ تھا تو یہ کیسا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات، جیو جیو۔ لہذا جنگ قسطنطنیہ میں جو یزید تھا وہ یزید بن ابو سفیان۔ اب انہوں نے یہ چار سردار مقرر کیے خلیفہ اول نے، اور انہیں شام کی طرف بھیج دیا، اور شام کی طرف بھیج کے انہیں یہ کہا
क्योंकि उस दौर में जो शाम था, जिसे आज मुल्क शाम कहा जाता है, उसके मुख्तलिफ हिस्से थे। शाम पूरा इलाका था और उसमें मुख्तलिफ हिस्से थे। मसलन उसमें उसका एक हिस्सा जो था उसे दमिश्क कहा जाता था, दमिश्क उसमें आता था, फलस्तीन उसमें आता था, उर्दन उसमें आता था, और हमस उसमें आता था। ये वो इलाके थे जो शाम का हिस्सा थे। जब इसने शाम की तरफ लश्कर भेजा तो शाम की तरफ लश्कर भेज के साथ ही इन्होंने ये कह दिया कि अगर शाम फतह हो जाए, ये पूरा इलाका आप फतह कर लें, आप जो 4 सरदार जा रहे हैं, तो हमस जो है, जो आज फलस्तीन के एरिया में है, उसकी गवर्नरी मिलेगी अबू उबैदा जर्राह। उर्दन की सरबराही मिलेगी शर्जील बिन हसना, और फलस्तीन की गवर्नरी मिलेगी अमर बिन आस को, और दमिश्क का सरबराह बनाया जाएगा यजीद बिन अबू सुफियान। लिहाजा अगर तुम इस इलाके को फतह कर लो तो ये चारों मुल्क जो है तुम चारों आपस में बांट लेना, और मैं तुम्हें पहले ही लिख के देता हूं कि इसमें तुम ही हुक्मरान बन जाना, फतह भी तुम कर लेना, हाकम भी तुम बन जाना। ये कौन सा दौर? पहली खिलाफत का दौर। अब जब ये वादा करके उनको भेज दिया गया तो 18 ये जो इधर से पहले खलीफा ने इनको भेजा, तो इन्होंने जाके 18 हिजरी में इसको फतह कर लिया। अब उधर से पहली खिलाफत का दौर भी गुजर चुका था, दूसरी खिलाफत का दौर भी गुजर चुका था, और तीसरी खिलाफत का दौर आ चुका था। लिहाजा यजीद बिन अबू सुफियान, जो अबू सुफियान का बेटा था, वो दमिश्क का मालिक बना 18 हिजरी में। जब ये दमिश्क का मालिक बना तो 18 हिजरी में ये ताउन के मर्ज में मुब्तला हुआ, और ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर ये मर गया। ये मरता हुआ अपने छोटे भाई मुआविया बिन अबू सुफियान को दमिश्क का गवर्नर बना गया। जब ये मरता हुआ अपने भाई को दमिश्क का गवर्नर बना गया तो उधर तीसरे खलीफा का दौर का आगाज हो गया। अब ये लफ्ज मैंने थोड़ी सी आपको तमहीज सुनाई थी, ये खुश्क थी, लेकिन अब इसमें से मैं जो नतीजा निकालने लगा, 18 हिजरी में जब यजीद बिन अबू सुफियान के मरने के बाद मुआविया बिन अबू सुफियान तख्त पर बैठा, तो उधर उस्मान इब्ने उफ़ान मुसलमानों के तीसरे खलीफा बन गए। वो भी उमवी थे, ये भी उमवी था। वो भी नस्ल उमैया से थे, ये भी नस्ल उमैया थे। वो भी उस्मान बिन अफ़ान बिन आस बिन उमैया थे, और ये जो था ये मुआविया बिन अबू सुफियान बिन आस बिन उमैया, यानी नस्ल एक थी, दोनों के परदादा एक थे। अब मदीना में भी उमवी हुक्मरान बैठ गया और शाम में भी उमवी हुक्मरान बैठ गया। मैं करबला के वजूहात पढ़ रहा हूं। दुश्मनी मैंने कल की तकरीर में पढ़ी थी कि दुश्मनी पुरानी थी, जिसकी दुश्मनी थी उसी की नस्ल में से 2 लोग, एक मदीने में मुसलमानों का हाकिम बन गया और एक शाम में मुसलमानों का हाकिम। जब वो दमिश्क में मुसलमानों का हाकिम बना तो तीसरे खलीफा ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर लिख के भेजा, एक सरकारी हुक्मनामा लिख के भेजा कि मैं यजीद मुआविया बिन अबू सुफियान को सिर्फ दमिश्क का गवर्नर नहीं, उर्दन, फलस्तीन, जहां शर्जील बिन हसना, अबू उबैदा बिन जर्राह और अमर बिन आस हमस, इन तीनों इलाकों के गवर्नर अपनी अपनी गवर्नरी छोड़ के ये तीनों इलाके भी मुआविया बिन अबू सुफियान के तसल्लुफ में थे। अब वो 3 इलाके भी मुआविया बिन अबू सुफियान के तसल्लुफ में। अब बिला शिरकत गैर, बगैर किसी हिस्सादारी और शराकत के, मुआविया बिन अबू सुफियान 18 हिजरी को पूरे इलाके शाम का हाकिम बन गया। ये 18 हिजरी को शाम का हाकिम बना। 23 हिजरी में तीसरे दौर का आगाज हो रहा है। अब
यहां से लेके 61 हिजरी तक ये मुसलसल शाम का हाकिम रहा। 41 साल, 41 ईयर्स, 41 साल बगैर किसी किस्म की मुजाहमत के, बगैर किसी किस्म की शिरकत के, इन्होंने इलाकाए शाम, अमीर तरीन इलाका था, उसकी हाकमियत की। 41 साल। और अगली बात सुनिएगा तारीख की, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये कोई शिया तारीख नहीं है। मैंने कल भी कहा था तारीख का मजहब और मसलक नहीं होता। 41 साल शाम के हाकम ने एक दिरहम और एक दिनार भी मदीने में मरकजी हुकूमत को नहीं दिया। यानी कि जिनके पास जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, जितना भी माल इकट्ठा होता था, जितना भी सरकारी टैक्स इकट्ठा होता था, ये सिर्फ शाम में रखते थे। अब शाम में क्या होने लगा? शाम में मस्जिदें नहीं, महल बनने लगे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कसर। अब शाम में बिल्कुल वही निजाम आ गया जिसकी मुखालिफत करते हुए मक्का में रसूल ने ऐलान किया। यानी कि रिसालत इमाम के आने से पहले अरब में शहनशाहियत थी, बड़े बड़े कसर बनाए जाते थे, बड़े बड़े महल बनाए जाते थे, शहनशाह उनमें रहते थे, बाकी लोग उनकी राया होती थी, वो उसको उन पे मुकम्मल हक रखते थे। किसी को अपनी जान, इज्जत, माल, औलाद पे कोई हक नहीं होता था। जो भी शहनशाह होता था वो उन तमाम इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह इस्तेमाल करता था। खुद बड़े बड़े घरों में रहते थे, बड़े बड़े घर बनाना, ऊंचे ऊंचे घर बनाना, ये उनकी फितरत। इस्लाम उसकी नफी में आया, इस्लाम ने उनकी मुजम्मत की थी, इस्लाम ने बादशाहत के निजाम को चैलेंज किया। अब ये है बदबख्ती मुसलमानों की तारीख की कि जिसको खत्म करने के लिए इस्लाम आया था, अबू सुफियान की नस्ल ने इस्लाम से बदला ये लिया कि मुसलमान बन के उसी निजाम को इस्लाम की सूरत में दोबारा ले आए। दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार, ज़रबे बेशुमार। अब जब वो इस निजाम को लेके आए तो अब इस निजाम को शाह साहब कहते हैं मलूकियत। अब इस पे अबुल आला मदूदी अहले सुन्नत के जो मौलाना थे, उन्होंने किताब लिखी थी खिलाफत व मलूकियत। वो कहते थे कि मदीना में जो खुलफा थे वो खिलाफत के दौर को शाम वालों ने मलूकियत में बदल दिया। वहां खिलाफत रही लेकिन शाम में खलीफत और रसूल नहीं, शाम में मलूकियत बन गई। बेशक इधर शाम में मलूकियत का राज हो गया जी, बड़े बड़े कसर, बड़े बड़े महल। अब इन्होंने मलूकियत की बुनियाद डाल। मलूकियत का मजाज क्या होता है? वहां मजाज ये होता है सिर्फ शहनशाहियत हो, सिर्फ अपना हुक्म चले, उसके अलावा किसी की बात न चले। अब मैंने आपके सामने पढ़ा कि कितने साल इन्होंने हुकूमत की? 41 साल, 41 ईयर्स। 41 साल मुसलसल जब एक हाकम रहा हो और एक ही शख्स की हुक्मरानी हो, तो आप मुझे बताएं कि वहां लोगों की जहनीयत क्या हो। अब शाम वालों ने मदीने वाला इस्लाम देखा ही नहीं। उन्हें यह पता था कि ये मुसलमानों का नुमाइंदा है, ये मुसलमानों का खलीफा है। जो वो करते थे शाम वाले उसे इस्लाम समझते। बात समझ में आ रही जी? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अब यहां पर आके जो लोग कहते हैं इस्लाम इतना बदनाम क्यों हुआ, मैं बताता हूं इस्लाम बदनाम। इन लोगों ने, इन बादशाहों के किरदारों को नए मुसलमान होने वाले लोगों ने असल इस्लाम समझा, क्योंकि उन्होंने अहले बैत को देखा ही नहीं था। ना उन्होंने रसूल को देखा, ना उन्होंने मौला अली को देखा, ना वो कभी मदीना गए। वो शाम में इन्होंने उनको मुसलमान किया कि कलमा पढ़ो, उन्होंने कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा जी वो जो मदीने वाला मोहम्मद है जिसकी अरब में हुक्मरानी है, मैं उसका नुमाइंदा हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब इनके जो किरदार होते थे वो समझते थे ये इस्लाम है। शाम वालों ने सिक्के का दूसरा रुख देखा ही नहीं, इन्होंने मलूकियत को इस्लाम समझा।
इन्होंने उमवियों के किरदार को इस्लाम, ये समझते थे ये इस्लाम के हुक्मरान है, ये इस्लाम के हाकिम है, तो जो ये कर रहे हैं वो इस्लाम। अब उधर से मौला अमीरुल मोमिनीन को जब इक़्तिदार मिला, तो जब मौला अमीरुल मोमिनीन के पास इक़्तिदार आया तो इक़्तिदार की जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी थी। मदीना, उससे पहले खलीफा कत्ल हो चुका था, मदीना में उसके कत्ल के खिलाफ एहतजाज हो रहा था और उसकी जिम्मेदारी मौला अली को ठहराया जा रहा था। मदीना में तीसरे खलीफा के कत्ल के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन उस कत्ल के एहतजाज में अली के खिलाफ इकट्ठे हो चुके थे। शाम इनके कब्जे में था। तीसरा खलीफा जाता हुआ बसरा का, कूफा का, इन तमाम इलाकों के गवर्नर्स अपने रिश्तेदार और रोमैया की नस्ल के लोग बैठा बैठा। आप समझे कि अमीरुल मोमिनीन ने किस दौर में हुक्मरानी की। न मदीना अली के पास, न बसरा अली के पास, न कूफा अली के पास। इस तमाम हालत में, इस तमाम शोरश में मौला अमीरुल मोमिनीन ने यह फैसला किया कि अब मुझे मदीना नहीं रहना। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपना तख्त हुकूमत कूफा में कायम कर। मौला कूफा क्यों आए थे? कूफा मौला इसलिए आए थे कि ये बसरा के बिल्कुल करीब था। बसरा फौजी छावनी थी। बसरा जो थी वो आर्मी का बेस कैंप था और शाम से फौजें जो थी वो बसरा तक पहुंच चुकी थी और बसरा से आगे इनकी अगली मंजिल मदीना। इस तमाम रास्ते में जितने भी छोटे 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 शहर और मुल्क आते थे उन तमाम में इनके हाकम बैठे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कूफा अपना तख्त हुकूमत रख के इनका रास्ता रोक। ये बातें खुश्क जरूर लगेंगी, लेकिन इन बातों में मैं ये चाहता हूं कि ये तारीख जो किताबों में गर्द आलूद हो चुकी है, मैं लफ्जों की सूरत में ज़हनों तक पहुंचा। बेशक बेशक किबला, बहुत खूब। अब मौला अमीरुल मोमिनीन कूफा आ चुके थे। कूफा आने की वजह कि अली ने फरमाया कि यहां से इनका रास्ता रो, मदीने वाली साजिशों का भी मुकाबला करूं, शाम वाली साजिशों का भी मुकाबला करूं। दरमियान में आके मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपना तख्त हुकूमत का। कूफा फौजी छावनी थी। कूफा में भी फौजों के लोग रहते थे। कूफा में भी ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन, अब कूफा की जो हालत थी, ये कूफा बहुत पुराना शहर नहीं था, ये बहुत बाद में बना हुआ शहर था। कूफा के लोगों ने, अक्सरियत ने मौला अली का साथ दिया। उसकी वजह यह है कि जो जंग जमल हुई है, उस जंग जमल में सिर्फ 1000 लोग मदीने से आए थे, बाकी 70,000 लोग जो है वो कूफा से अली के साथ हैं। अब जो चालें शाम में बैठ के यजीद का बाप चल रहा था, उसका मुकाबला कूफा में बैठ के अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब का। अमीरुल मोमिनीन ने इस अंदाज से इसकी शोरश को खत्म किया। अब इन्होंने लोगों के जहन बना दिए, अली की दुश्मनी में नस्लें तैयार कर दी, अमीरुल मोमिनीन की दुश्मनी में नस्लें तैयार की। अब अमीरुल मोमिनीन खुद बैठे हुए हैं कूफा में और जंग जमल आ चुकी है। जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी हिकमत के साथ अमीरुल मोमिनीन ने इस जंग का पासा पलट दिया। और जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने ऊंटनी के सीने पे नेजा मारा था तो उधर से माविया का कासद पहुंच गया। अली ने वही नेजा लहू से भरा निकाल के उसको खत लिखा कि होशियार हो जा, अब अली शाम आ रहा है। क्या बात, क्या बात। तैयार हो जा, अब अली तेरी तरफ शाम आ रहा। जंग जमल को बड़ी हिकमत के साथ मौला ने वो किया। जब जंग जमल खत्म हो चुकी तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने मुसलमानों को माले गनीमत नहीं लूटने दिया जो मौला अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में आए। अली इब्न अबी तालिब वापस कूफा आ गए। जब कूफा आ गए तो अब सफीन की तैयारी शुरू। सफीन एक मैदान है, उस मैदान में मुआविया अपना लश्कर लेके पहुंच गया था। अमीरुल मोमिनीन ने कूफा में बैठ के खत लिखा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तू अपने साथी भेज रहा है, अपने लोग भेज रहा है जो कूफा में आके रात की तरीकी में आते हैं और मेरे मानने वालों को
तकलीफ और अजियत देते हैं, अगर तुझ में जुर्रत है तो सीधा अली के मुकाबले पे क्यों नहीं आता? तो खुद अली के मुकाबले पे आ। अब जब अली जमल और सफीन में जा रहे थे तो मेरे सुनने वाले सामीन और नाजरीन, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बदर वाला जवान अली नहीं था, ये उहुद वाले अली नहीं थे, लेकिन फिर भी अमीर अल मोमिनीन ने उस ज़ईफी में अपना शबाब दिखाया। आज जब जमल और सफीन में अमीर अल मोमिनीन जा रहे थे तो अमीर अल मोमिनीन को अपनी ज़ईफी पे इस वजह से अली अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर रहे थे कि अमीर अल मोमिनीन के साथ 18 उस दौर के अली चल रहे थे। क्या बात है, क्या कहने अमीर अल मोमिनीन के बेटों के, जिधर चेहरा देखते थे ऐसे लगता था कि मुख्तलिफ 18 आईने हैं जिससे अली नजर आ रहा है। बेशक सफीन के मैदान में, सफीन में मुआविया का लश्कर पहले पहुंच गया, इसने दरिया फुरात के किनारे पे कब्जा कर लिया। दरिया फुरात के किनारे पे कब्जा करना था, खबर अमीर अल मोमिनीन को पहुंची कि यार इन्होंने दरिया फुरात के किनारे पे कब्जा कर लिया। अमीर अल मोमिनीन ने हजरत इमाम हसन को भेजा, हसन इनसे जाके कह दरिया फुरात का किनारा खाली करो। इमाम हसन ने आके इनसे कहा दरिया फुरात का किनारा खाली करो। इन्होंने कहा हम अली और अली के लश्कर को पानी नहीं पीने देंगे, हम अली और अली के लश्कर को यहाँ से फुरात से पानी नहीं लेने देंगे। इतना कहना था। मौला इमाम हसन ने कहा तुम्हारी जुर्रत ही नहीं है कि तुम अली के लश्कर में पानी बंद करो, तुम्हें नहीं पता कायनात का सारा पानी मेरी माँ फातिमा का हक है और हम अपनी माँ के हक पे किसी को कब्जा नहीं करने देते। क्या बात है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियो किबला जियो, क्या बात है। किताबें कहती हैं कि मौला इमाम हसन मुश्तबा ने बाबा अली से पूछा, अमीर अल मोमिनीन ने कहा था ए हसन अगर ये फुरात का किनारा खाली करे तो ठीक है, पहले गुफ्तगू से बात करना, पहले जुबान से बात करना, पहले इन्हें अखलाक से समझाना, अगर ना समझे तो मैं अली तुम्हें इख्तियार दे के भेज रहा हूं कि तुम इनसे बजोर शमशीर, बजोर बाजू, बजोर ताकत भी इनसे दरिया फुरात का किनारा खाली करवा सकते हो। मालिक अश्तर ने जो ही इनका जवाब सुना कि वो दरिया फुरात का किनारा खाली नहीं करवाएंगे तो मालिक अश्तर ने कहा ए मौला हजरत इमाम हसन मुश्तबा मुझे इजाजत दीजिए शहजादा, मैं लश्कर को तैयार करूं, मैं तीर अंदाजों को आगे करूं, मैं तलवार बाजों को पीछे करूं, मैं लश्कर लेके इन पे हमला करूं, क्योंकि आपके बाबा अली ने आपको इजाजत दी थी। मेरे हसन ने एक दफा देख के मालिक अश्तर का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे अय चचा मालिक अगर जंग करनी हो तो लश्कर की जरूरत नहीं, इन पूरे लश्कर के लिए अकेला हसन काफी है। क्या बात है, क्या बात है, नारे मुझे लश्कर की जरूरत नहीं, मुझे तीर बाजों की जरूरत नहीं, मुझे तलवार बाजों की जरूरत नहीं, मुझे अकेले हसन को जाने दीजिए। मालिक इश्तर ने देख के कहा मौला ये हजारों का लश्कर है, दरिया फुरात का किनारा है, आप अली के बड़े बेटे हैं, आप आने वाले इमाम हैं, मैं कभी भी आपको इन चलते हुए तीरों में, इन लश्कर में मैं भेज नहीं सकता। किताबें कहती हैं हुक्म इमाम के तहत मालिक इश्तर वहीं रुके। अमीर हसन ने अपने बाबा अली की तरफ देखा, अली खैमे से बाहर आए, अली ने हाथ उठा के मौला हसन को इजाजत दी। इमाम हसन घोड़े की जीन पे आए। किताबें कहती हैं मौला हसन ने तलवार चलाने के लिए न तलवार को दाएं बाएं, मौला इमाम हसन ने अपनी तलवार को एक सीधे बाजू के रुख पे किया और करके अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। फुरात के किनारे पे जितने सिपाही खड़े थे, जहां जहां से मौला हसन का घोड़ा गुजर रहा था, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे। जब दरिया फुरात का किनारा खाली हुआ, मेरे हसन ने अपना अलम जमीन पे गाड़ के कहा हम एक अली नहीं, हम कई अली हैं। क्या बात है, नारे जियो किबला जियो, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम एक अली नहीं, हम कई अली हैं, हमारे हम सारे अली हैं। बेशक। दरिया फुरात का किनारा खाली हुआ। किनारा खाली होने के बाद अमीर हसन ने अपने लश्कर से कहा आओ फुरात पे कब्जा करो। फुरात पे कब्जा हुआ। मुआविया के लश्कर से चीखों की आवाजें आई, ऐ अली हम प्यासे हैं। मौला हसन की आवाज आई, हम तुम पे दरिया फुरात का किनारा खोलते हैं क्योंकि हम सखी भी हैं। क्या बात है, अली अली हम करीम भी हैं। फुरात का किनारा आए, मेरे हसन ने अपने लश्कर से कहा कि मुआविया के लश्कर के जो लोग भी पानी पीना चाहें इन्हें पानी पीने से ना रोकना, जितना पानी पीना चाहें पानी पिए। दरिया फुरात के किनारे पे जंग उसी वक्त खत्म हो जाती जब लश्कर ने फुरात पे कब्जा कर लिया था। अगर मौला हसन इन पे पानी बंद कर देते तो कितनी देर तक फौज जो है वो सरवाइव कर सकती थी। मर जाती फौज 2 या 3 दिन में, बगैर जंग के फैसला हो जाता। लेकिन नहीं, ये करीम है।
अगले दिन सफीन का मक्तल सजा। ये वो जंग है जहां पर अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटों को खुल के लड़ने का मौका दिया। आहा, जहां अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि मेरे बेटे अपनी मर्जी से जितना हो सके लड़े। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जो मैदान सफीन में जंग की लश्कर बंदी की थी, जो लश्कर की तरतीब दी थी, उसका अंदाज ये था कि पहले अली के बेटे थे, फिर हाशमी थे, फिर अली के खास सहाबा थे, और पीछे अली का लश्कर। आहा, आगे आगे घोड़े पे अली, पीछे पीछे अमीर अल मोमिनीन के बेटे, ऐसे जैसे सितारों के झुरमुट में चांद चलता। आहा, उधर से लाखों का रश। अमीर अल मोमिनीन ने सबसे पहले अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को भेजा। मोहम्मद हनफिया मक्तल की जानब चले। अमीर अल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में आकर, मोहम्मद अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों पे मजबूती के साथ बंधना, और तुम्हारी नजर पहले लश्कर पे नहीं, तुम्हारी नजर आखिरी सफ पे होनी चाहिए। बेशक, पहली सफ को नहीं देखना, आखिरी सफ को देखना है। मोहम्मद हनफिया अमीर अल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक घोड़ा लेके चले। सामने से तीर अंदाजों का पहला हमला हुआ, पहला तीरों की बारिश आई। मोहम्मद हनफिया ने अपने सर को नीचे झुकाया, घोड़े को एक लम्हे के लिए रोका। तीर सर से गुजरे, मोहम्मद बिन हनफिया ने दोबारा घोड़ा दौड़ाया, फिर आगे से तीरों की बारिश आई। मोहम्मद हनफिया ने अपने सर को फिर एक दफा नीचे किया, अपने तीरों को सर से गुजारा। तीसरी बार जब मोहम्मद हनफिया रुके तो मोहम्मद हनफिया ने देखा कि सामने से तीर आ रहे हैं और मेरे करीब से घोड़ा सवार दौड़ के निकल गया है। मोहम्मद हनफिया ने कहा, ये कौन गया है? क्योंकि बाबा ने तो मुझे हुक्म दिया था। या पीछे से किसी ने आकर, मोहम्मद वापस आ जा, हसन खुद चले गए। मोहम्मद आप वापस आ जाए, मौला हसन खुद चले गए हैं। जब मौला हसन के जाने का नाम सुना, मोहम्मद हनफिया वापस आए। मौला अमीर अल मोमिनीन घोड़े पे बैठे हुए थे। मोहम्मद हनफिया करीब आए, करीब आके अपने सर को झुकाया। मौला हसन ने कहा, मोहम्मद हनफिया शर्मिंदा हो रहा है कि तूने 3 बार अपने घोड़े को रोका और तेरे पास से हसन गुजर गया। तेरा और उसका मुकाबला नहीं है, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। क्या बात है, नारे है दीदी, या अली 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 अली, जियो मेरा जियो, कोई मुकाबला नहीं, आहा, वो वाह, अली का बेटा है, वो मुस्तफा का बेटा है। बस अजीजाने मोहतरम, सामीन गिरामी कद्र, मौला हसन मुश्तबा ने बहुत जबरदस्त हमला किया। मौला हसन मुश्तबा के बाद अगली बेहतरीन वार मौला अब्बास का था। बिल्कुल बिल्कुल उभरती हुई जवानी और शबाब था मौला सरकार अबुल फजल अब्बास बादशाह का। जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने सखी अब्बास को सफीन के मैदान की तरफ भेजा, मौला अब्बास सफीन में गए और चेहरे पे नकाब लेके गए। आहा, मौला अमीर अल मोमिनीन ने खुद मौला अब्बास को घोड़े की जीन पे बिठाया। घोड़े की जीन पे अब्बास बैठे हैं तो आज घोड़े के चलने का अंदाज बदल गया, आहा, क्योंकि आज अली ने अली को घोड़े पे सवार करवाया। मौला अबुल फजल अब्बास लाखों के लश्कर के सामने गए। वहां से एक कुरैब नामी शख्स आया। उसने आके मौला अब्बास के सामने खड़े होकर कहा कि मैं जंग करने के लिए आया था, लेकिन तेरे साथ नहीं लड़ सकता। मौला अब्बास ने कहा, मेरे साथ क्यों नहीं लड़ सकता? उसने कहा, तू अभी छोटा है। ये कह के जाने लगा। सखी अब्बास ने उसके जाते हुए गिरेबान से पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींच के कहा, तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे? क्या बात, कुरैब से कहा, वार कर। कुरैब ने कहा, पहले तू कर। मौला अब्बास ने कहा, तू बाद में बचेगा तो करेगा। हाय हाय, कुरैब ने अपने बदन की पूरी ताकत इकट्ठी की, अपने बदन की पूरी ताकत को इकट्ठा करके अपनी कलाई में लेके आया और दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़ के अपने पीछे से तलवार को लाके पूरे जोर से तलवार सखी अब्बास के सर की तरफ की। मौला अब्बास ने तलवार खींची नहीं, मौला अब्बास ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। उसको अपनी आंखों में मौत रक्स करती हुई नजर आई, उसके बदन में कप कपी तारी हुई।
उसके हाथ से तलवार छूट के जमीन पे गिरी। तलवार का जमीन पे गिरना था, उसका बदन वहीं पे सकते की हालत में खड़ा सखी अब्बास की आंखों की तरफ देख रहा था। मौला अब्बास ने अपनी तलवार को न्याम से निकाल के गुजरते हुए अब्बास मौला ने न जोर का हमला, न सीने का हमला, न बाजू का जोर, न कलाई का जोर, मौला अब्बास ने अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे फेरा। उसकी तलवार गर्दन पे फिरनी थी या उसकी गर्दन लुढ़कती हुई जमीन पे आके गिरी। मौला अब्बास 4 कदम आगे गए, माल के स्तर बढ़ के पीछे आए। मौला अब्बास के हाथों से तलवार ली, तलवार को दाएं और बाएं देखा, तलवार पे कोई लहू का धब्बा नहीं, कोई खून की लकीर नहीं। मौला माल के अस्तर मौला अब्बास की तरफ देख के कहते हैं कि अभी कत्ल करके आई है, इस पे उसका एक भी खून का कतरा नहीं लगा और उसका सर जमीन पे गिर गया है। जनाब अब्बास देख के कहते, चचा माल के अस्तर, आप मेरे पापा के सहाबी हैं, आपको नहीं पता जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर का हाथ था। क्या बात है, नारे हैदरी, या अली या अली अली अली, जियो गिबला। ये मुहर्रिकात है जमल और सफीन के। हाँ। इंशाल्लाह गुफ्तगू आने वाली मजालस में आगे बढ़ती जाएगी और हम चलते जाएंगे अमीर अल मोमिनीन के दौर से इमाम हसन के दौर और इमाम हसन के दौर से आगे करबला तक। ये करबला का वाक़या रूनुमा क्यों हुआ, और मैं फिर बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मजालस को मैं बतौर तारीखी विरसा महफूज करवा रहा हूँ कि ये तारीखी विरसे की सूरत में महफूज हो। अगर हमारे जिंदगी के बाद भी कोई तालिब इल्म चाहे कि मुझे करबला की तहकीक और करबला के हकाइक और मुहर्रिकात को जानना है, तो हमारी ये गुफ्तगू नस्लों के लिए हदायत क्या चराग बन सके। बेशक। जिस कूफा में अमीर अल मोमिनीन की शाही थी, उसी कूफा में अली की बेटियां पाबंद हाथों के साथ रस्सियों में जकड़ी हुई आ गई। कल में मुसाहिब की नशिस्त में मैंने आपको बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। 2 मुहर्रम इमाम हुसैन बादशाह करबला पहुंच गए। करबला से थोड़ा दूर थे, या इमाम हुसैन ने एक शख्स से पूछा कि ये जो आगे सहरा है, जो रेगिस्तान है, इसका नाम क्या है? उसने कहा इस जगह का नाम गाजरिया है। मौलाना ने फरमाया इसका कोई और नाम? उसने कहा इसका नाम नैनवा है। मौलाना ने फरमाया इसका कोई और नाम? इसका नाम दश्ते बिला है। मौलाना ने फरमाया इसका कोई और नाम? उसने कहा इसका नाम करबो बला है। मौला सवारी से नीचे उतरे, रेत उठाई, सूंघी और सूंघ के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही है वो सरजमीन जिसका हमने वादा किया। मौला ने आवाज दे के कहा अब बात जाइए और जाके पता कीजिए इस जमीन की मलकियत किसके पास। पता चला इस जमीन की मलकियत कबीला बनी असद के पास है। कबीला बनी असद में हजरत अब्बास गए। कबीला बनी असद के लोगों ने पहली बार इतना वजी जवान अपनी बस्ती और आबादी में देखा। कबीला बनी असद के बच्चे जहां जहां से मौला अब्बास का घोड़ा गुजर रहे थे, मौला अब्बास को देख रहे थे। कबीला बनी असद के मर्द उल्टे कदमों अब्बास के घोड़े के आगे दौड़ रहे। कबीला बनी असद के सरदार को बुलाया गया। कबीला बनी असद के सरदार ने अपने घर के बाहर अपनी कुर्सी लगाई। हजरत अब्बास घोड़े से उतरे, कुर्सी पे हजरत अब्बास को बिठाया। हजरत अब्बास को बिठाने के बाद कहने लगा वजी तेरी नौजवान मेरी बस्ती में आने की वजह। मौला अबुल फजल अब्बास की आवाज आई, ऐ कबीला बनी असद का बूढ़ा, मैं तुम्हें इसलिए पैगाम देने के लिए आया हूं कि मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है। जब का मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है, तो कबीला बनी असद के बूढ़े ने मौला अब्बास का चेहरा देख के कहा तेरा भी कोई सरदार है? तेरा चेहरा बता रहा है तू खुद सरदार है, तेरे चेहरे की वजाहत बता रही है कि तू खुद रईस है। इतना कहना था मौला अब्बास की आवाज आई, मैं सरदार नहीं, मैं नौकर हूं, मेरा सरदार कोई और है। कबीला बनी असद के बुजुर्ग ने मौला इमाम हुसैन की मिलने की ख्वाहिश को कबूल किया। करीम करबला कबीला बनी असद में दाखिल हुए। कबीला बनी असद में दाखिल होते हुए मौला इमाम हुसैन की हालत क्या थी। दाएं अब्बास चल रहे थे, बाएं अकबर चल रहे थे, पीछे कासम ओन मोहम्मद थे। बनी हाशम के हल्का में
मौला इमाम हुसैन की सवारी चलती चलती कबीला बनी असद में पहुंची। कबीला बनी असद के मर्दोजन ने इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन को बिठाने के लिए नशिस्त का एहतमाम किया गया। इमाम हुसैन ने कबीला बनी असद के बुजुर्ग से पूछा, ए कबीला बनी असद का बुजुर्ग, ये सहरा, ये रेगिस्तान किसकी मलकियत है? कहने लगा, ए मुसाफर, ये हमारी मलकियत है। फरमाया, मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। खरीदने का नाम आना था। कबीला बनी असद के बूढ़े ने रो के कहा, ए मुसाफर, हो सकता है तो इस इलाके से ना वाकफ हो सकता है तुम्हें किसी ने ना बताया हो, लेकिन इस जमीन में खेती नहीं होती, इस जमीन में ज़राअत नहीं होती, ये सब्जा नहीं उगती, यहाँ बारिश नहीं होती। मौला ने फरमाया, क्यों? कहने लगा, खबर है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से नबी रोते हुए गुजरे हैं, यहाँ से अंबिया चीखे मारते हुए गुजरे हैं। हम तो यहाँ पर अपनी सकूनी मकानात भी नहीं बना सकते। इस रेगिस्तान को हमने जब भी देखा है वीरान देखा है। यहाँ से तो कोई काफिला भी नहीं गुजरता, यहाँ से खौफ आता है, यहाँ से कभी किसी का गुजर नहीं हुआ। मौला ने फरमाया, खौफ की वजह क्या है? कहने लगा, कभी कभी हमारे कबीले की मस्तूरात जब फुरात से पानी भरने के लिए जाती है तो वो सहरा से गुजरती है। ऐ मुसाफिर, मैं तुझे क्या बताऊं, आधी आधी रात को इस सहरा से किसी मस्तूर के रोने की आवाज आती है। कोई बीबी है जो इन टीलों में रोती है। ये नाम सुनना था। मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आने के बाद मौला हुसैन ने कहा, मुझे यही टीले चाहिए, मैं इसी सहरा को खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, फिर क्या खरीदना, क्या सौदा और क्या कीमत? आप इस सहरा को ले सकते हैं। फरमाया, नहीं, गस्बी मुसल्ले पे नमाज नहीं होती, मुझे यहाँ नमाज इश्क अदा करनी है। 12 मुरब्बा मील फुरात का किनारा मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। मौला इमाम हुसैन ने उससे उस मुरब्बा मील जमीन की मलकियत के 60,000 दिनार तय किए। 60,000 दिनार का नाम आना था। 60,000 दिनार सुनने के बाद मौला इमाम हुसैन वहां आए जहां महमल में शहजादी बैठी थी। फरमाया, ए बिनते पैगंबर, 60,000 दिनार में खरीदना चाहता हूँ। फरमाया, हुसैन इब्ने अली, फिर 30,000 दिनार अपनी तरफ से दीजिएगा, 30,000 दिनार मेरी तरफ से दीजिएगा, क्योंकि मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, मेरा करबला में हिस्सा है। 30,000 दिनार बहन की तरफ से, 30,000 दिनार भाई की तरफ से। मौला हुसैन की आवाज खरीद जो ली है, मैं आपके औन के नाम लिखवाता हूँ। बीबी रो के कहती, ना मेरे औन के नाम लिखवाना, ना अपने सज्जाद के नाम लिखवाना। ऐसे कर, अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, जगीर अकबर के नाम लिखवा देते हैं। यही तो वजह थी कि शाम में गरीबा सकीना रो के कहती रही, मुझे अकबर की जागीर में तमाचे मारे गए। 60,000 दिनार में करबला की जमीन को खरीद लिया गया। करबला की जमीन को खरीदने के बाद जब कबीला बनी असद के बूढ़े के हाथ में 60,000 दिनार रखे, इमाम हुसैन ने उससे बैनामा लिखवा लिया। जब हवा हो गई अली अकबर के नाम पे, मौला हुसैन की आवाज आई, ए कबीला बनी असद का बूढ़ा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। 8 रातें हमने इस धरती पे मेहमान बनना है। 8 रातें तुम्हारा कोई मर्द इन टीलों से न गुजरे। जब कहा ना, तुम्हारा कोई मर्द और बच्चा इन टीलों से न गुजरे। देख के कहने लगा, आप मुसाफिर हैं, आपकी खैरियत पूछने के लिए तो कोई आ सकता है। फरमाया, 8 दिन कोई नहीं आएगा। उसने कहा, कोई खास वजह? फरमाया, इसलिए कि यहाँ मेरी बहनों के खैमे होंगे, यहाँ मेरी बेटियों के खैमे होंगे। बहनों का नाम आना था। कबीला बनी असद के बूढ़े ने हाथ जोड़े, रोकने लगा, मुसाफिर, जिसका भी कलमा पड़ता है तुझे उसकी कसम है, जितनी जल्दी हो सके इस सहरा को छोड़। मुझे नहीं पता था तेरे साथ तेरी बहनें हैं, मुझे नहीं पता था तेरे साथ तेरी बेटियां हैं। इतना कहना था। मौला हुसैन की आवाज आई, कबीला बनी हजरत का बूढ़ा, तूने कलमे का नाम लिया है, तू मुझे बता तू किसका कलमा पड़ता है? कहने लगा, मदीने वाले मोहम्मद का। कहा, कभी मदीना गया है? कहने लगा, जवानी की आलम में एक बार गया था। क्या देखा था? कहने लगा, मस्जिद नबी में रसूल की जियारत की थी। फरमाया, जब देखा रसूल को, रसूल क्या कर रहे थे? कहने लगा, मिंबर में बैठे हुए थे, उनकी गोद में एक बच्चा था, वो बार बार उस बच्चे का मुंह चूमते थे। मैंने रसूल से पूछा था, या रसूल अल्लाह कौन है? कहा, ये मेरा बेटा हुसैन है। मुझे उस हुसैन से बड़ा इश्क हो गया था, ऐसे लगता था कि मुस्तफा को अपनी जान से प्यारा ये बेटा है। हुसैन, मौला की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रो के कहा, कबीला बनी असद का बूढ़ा, वो हुसैन इब्ने अली मैं ही हूँ। जब कहा वो हुसैन इब्ने अली मैं हूँ, तड़प गया कबीला बनी असद का बूढ़ा। कह लगा, क्यों छोड़ आया मदीना, क्यों छोड़ दी अपने नाना की नगरी? आवाज आई, मदीना में मेरी माँ के पहलू को जख्मी कर दिया गया, मेरे भाई के जनाजे पे तीर मार दिए गए, अब मुझे मदीना में रहने कोई नहीं देता, मैं बहने बेटियां लेके आया हूँ। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता है, हम अपने घर खाली करवाते हैं, हमारे मकानात हाजिर हैं। फरमाया, मैं तुम्हारे मकानात में रहने नहीं आया, मैं अपने घर बनाऊंगा। ये कहने के बाद मौला हुसैन ने कहा, एक कबीला बनी असद का बूढ़ा, यहाँ हमारे घर तो नहीं बनेंगे, यहाँ हमारी कब्रें बनेंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इस जगीर की
रखवाली करने के लिए, इस जगीर की निगरानी करने के लिए तेरे नाम लिख दो। तो मुझसे सिर्फ एक वादा कर, यहाँ सिर्फ हमारी कब्रें होंगी, तुम रहना अपनी मर्जी से, तुम घर अपनी मर्जी से बनाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हुसैन तुमसे एक ही कीमत मांगता है, यहाँ मेरे जवार आया करेंगे, उनके खाने का इंतजाम करना, उनके पीने का इंतजाम करना। आज भी मुल्क इराक में रवाज है, कोई इंसान गरीब से गरीब तर भी हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, वो पानी लेके रास्ते में खड़ा हो जाता है, वो हुसैन के जायरीन को पानी पिलाता है, कोई हुसैन के जायरीन को खजूरें खिलाता है। हर कोई अपनी तौफीक के मुताबिक क्यों देता है? क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने वादा लिया था कि इस मुल्क को मैं नबियों की सजदागाह बनाऊंगा, लेकिन मेरे जवार को तकलीफ न देना, मेरे जायर को तकलीफ न देना, जो मेरी कब्र को चूमने के लिए आए उसका एहतराम करना। कबीला बनी असद के बुढ़ो, कबीला बनी असद के बच्चों से हुसैन इब्ने अली ने कहा, एक कबीला बनी असद के बुढ़ो, 10 मुहर्रम की असर के वक्त तुम इस सहरा में उतरना, यहाँ कुछ लाशें पड़े होंगे, अगर हो सके कुछ कब्रें बना देना, उन लाशों को दफना देना। ये कहने के बाद मौला हुसैन ने कबीला बनी असद की औरतों से कहा, हो सकता है तुम्हारे मर्द फौजों के डर से ना आए, तो पानी भरने के बहाने फुरात जाना, हमारी लाशों पे ऊपर रेत डाल देना। ये कहने के बाद गरीब एक आके कहा, तुम कभी वहां से गुजरे हो? कहने लगे, फरजंद रसूल हाँ कभी जाते हैं। क्या करते हो? कहते खेल खेलते हैं। क्या खेलते हो? कहते यहाँ से रेत उठाते हैं, वहां रख देते हैं, वहां से रेत उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं। मौला हुसैन रो के कहने लगे, एक कबीला बनी असद के बच्चों, 10 मुहर्रम की असर के वक्त तुम इन टीलों पे आ जाना, रेत उठाना, कुछ लाशें पड़ी होंगी, उन लाशों पे रख लेना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, मेरी औलाद दफन हो जाएगी। आए हुसैन, आए करीम हुसैन, अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मैं मेरे मालिक, मेरे खालिक, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। सैयद इंतज़ार शाह साहब के, इनके खानवादा, इनके बेटों, इनकी नस्ल, इनकी औलाद, मेरे मालिक इन तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा, ये सिलसिला अज़ादारी इनकी नस्लों में मुंतकिल फरमा, इन्हें विलायत अली पे हमेशा मुतमस्सिक फरमा। मेरे मौला उनको सरकार वारिस के नासरीन में शुमार फरमा। देखने वाले नाजरीन, सुनने वाले सामीन जो दुआओं के लिए कह रहे हैं, मेरे मालिक इन तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मैं नजफ अमीरुल मोमिनीन के शहर में बैठ के आपसे मुखातब हूँ, मेरा मौला आप तमाम को नजफ व करबला की जियारत नसीब फरमाए, सामराव काज़िम की जियारत नसीब फरमाए, शाम बकिया की जियारत नसीब फरमाए। उस वक्त तक किसी मोमन को मौत ना आए जब तक वो करबला की जियारत ना कर ले, उस वक्त तक किसी को मौत ना आए जब तक वो हुसैन की जरी का बोसा ना ले ले। मेरा मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।